Good evening, sir. Good evening. Sir. Please take a seat. Thank you, sir. Chandan, are you comfortable in English? Sir, I'm comfortable in both Hindi and Both English. languages. Right. Very good. Introduce yourself to the board members. Sir, I have done my 10th from Motilal Phomra Sanatana Dharm Higher Secondary School, Chennai, and then I did my plus 2 in 2011 from Motilal Phomra Sanatana Dharma Higher Secondary School, and then I went on to doing Bachelor of Engineering from Anna University in 2015. After that, I started preparing for civil services, and while preparing in 2019, I started working with Byju's IS as a content developer, and since then I'm working in Byju's. Okay. So you are a content creator at Byju's. Yes, sir. So you also appeared in UPSC examinations, right? Yes, sir. Thrice. Yes. Did you get the chance for writing? So I mains? could able to write mains, but I could not able to qualify. So what went wrong in your mains? My preparation was not good at that time. When I realized it was too late for that. Okay. Now you have exhausted the. No, sir. You have attempts. Yes, sir. Oh, very good. Uh, I can see that your hobby is listening crime stories. Yes, sir. Why do you listen to these crime stories? Sir, basically I am more interested in investigating things which comes around. So whatever crime is happening around me, or in India, or it may be outside India, I would like to know how the police department are investigating those crimes, and how they are arriving at the results. Don't you think that watching too much of these kind of contents will have an adverse effect on your personality, on your psychology? Sir, I think it will make me more aware of the things around me, and I can make other aware about the crimes happening. So I can, at one point of time, I can control the crime as a citizen, and if I come to the service, I can surely it will help me in if I get in selected and as an BPS. Is it necessary to know the crime to control a crime? Is it necessary? Sir, I think knowing crime, it would definitely help in investigating, sir. Okay. What is crime according to you? Sir, anything which is not according to the law of the country, it can be said that it is a crime. It is a crime. So, do you think that the tax evaders are doing a crime? Certainly, sir. They are doing a crime. So, what the government is doing to tackle this crime? Sir, government has passed a law, Money Laundering Act, 1918. No, that is different. Money laundering is different. I'm just saying the tax evaders, those who are not paying taxes. Sir, government is giving some time for declaring themselves. If they declare in that particular time, their penalty would be less, and they would be the money would be counted as a legal money. Okay. Why don't we include this, this duty of paying tax as a fundamental duty in our constitution? If it is a crime, not paying tax is a crime, then we can certainly include it in our fundamental duty. What do you say? Sir, certainly, sir, we can add, but since committee has not recommended such. No, it was recommended by It was Swansea earlier committee. It was recommended by Swansea committee, but Yes. we did not include it. My question is this: that why didn't we include it? Sorry, sir, I cannot able to recall right now. Okay, now I'm just asking your opinion. Why? Sir, I think paying tax should be moral responsibility as well as the legal responsibility. No one should evade as far as a citizen is concerned. Okay. Can there be a possibility that someone wants to pay tax, but is not being able to pay tax? Is Sir, it a possibility? Sorry, sir. Yes, sir. There are such chances, as you said, because skills have not been developed at point of time, and the hassle which we face while paying taxes, it may be not
as per the knowledge that people are having. So in that case, they may evade with in the want of knowledge. Okay. My last question is: supposing you are the district magistrate, and 3 children have come to you, and you have got a flute. One child says that I am the poorest, I should get the flute. Another child says that I know how to play the flute, and therefore I should get the flute. And the third child says that I have made this flute, and therefore I should get the flute. What would be your decision and why? Sir, can you repeat once again? I was not able to hear. There is one child who is the poorest out of those 3, and he says that I should get the flute. Another child says that I should get the flute because I have made it. And third child says that it should be mine because I know how to play the flute. Okay, sir. So can I take a moment? I think, sir, at the first case, we must see whether the skill has been developed or not. No, I'm not asking for your logic. You just tell me your decision. Who should get the flute? Sir, the one who knows how to play flute. So if you don't give the flute to the person, to the child who has made it, stop making the flute. So we can skill them for playing flute, and then we can provide the instrument. Because I think without knowing the technicality of playing, if we give, the child will not understand what the actually mean, what the actually flute is. He would take it as just a stick rather than a flute. Okay, that would be your decision. Yes, sir. Okay, thank you. आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, राइट? जी सर. ओके. और आपने इंजीनियरिंग करा, राइट? जी सर. ओके, गुड. ठीक है, आप मुझे बताएं आपका जो प्लेस है वो हिस्ट्री में कहाँ इम्पोर्टेंट है? सर 1857 वाले घटना में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जगदीशपुर. ओके, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, मुझे आप बताएं कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बिहार का इम्पोर्टेंस क्या है? सर क्योंकि बिहार एक ऐसे जियोग्राफिक लोकेशन में है जहाँ बंगाल के साथ था, और वहीं से नेशनलिज्म की भावना पहले सबसे पहले उत्पन्न हुई थी. तो पूरे मॉडर्न इंडिया में बिहार का एक अहम स्थान है. हर एक इवेंट में, चंपारण से लेकर 1942 तक और आज़ादी के तक 1947 तक बिहार ने अनेकों फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं और लीडर्स दिए हैं जो भारत को आज़ादी दिलाने में मदद किए हैं. ठीक है, ठीक है. मुझे आप बताएं कि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, बौद्ध दर्शन के बारे में भी पढ़ा होगा. जी सर. ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? सर ये 8 तरीके का एक्शंस है जो हर एक बुद्धिज्म फॉलो करने वाले फॉलो करते हैं. क्या जो कि राइट फेथ, राइट Okay. एक्शन, राइट कॉन्डक्ट, राइट स्पीच, राइट मेडिटेशन. एंड जैन रिलीजन के अंदर त्रिरत्ना है एक, जी सर. वो क्या है? राइट कॉन्डक्ट, हम्म, राइट एक्शन, राइट फेथ. राइट फेथ. क्या होता क्या ये राइट फेथ का मतलब क्या हुआ? सॉरी सर, ओके, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ सर. ठीक है, कोई बात नहीं है. ओके, आप मुझे वेदांत का मतलब बताएं, क्या होता है वेदांत? सर वेदांत का मतलब ये है कि वो आखिरी में वेदों के अंत में लिखा गया हुआ या फिर आंकलन किया गया हुआ विचारधारा है. वेदों के अंत में. हाँ. ओके, कोई वेदांत दर्शन के बारे में कुछ बताएं मुझे. सर वेदांत में वो भक्ति और आत्मा का संबंध बताया गया है सर. ओके. जिसमें ये कहा गया है कि
आत्मा और ब्रह्म और भक्ति। सॉरी सर, अब अभी ऐसे कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, आप मुझे बताएं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करा है, तो आप मुझे बताएं कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? सॉरी सर, ओके, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? सॉरी सर, आया अच्छा, अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, चंदन, आपने पढ़ाई की है चेन्नई से। जी सर। एजुकेशन तो आपका चेन्नई में ही हुआ है, जी सर। बट ओरिजिनली बर्थ तो आपका बिहार में हुआ होगा। जी सर। और अब आप बीपीएससी, अभी तक तो आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं? नहीं सर, चेन्नई रहते हैं, पर मेरा जो काम है वो बेंगलोर में है। अच्छा, तो आप वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कोरोना की वजह से, इसलिए हम चेन्नई से ही कर रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ, ठीक है। और फिर से आप सर्विस अब बिहार में करना चाहते हैं। जी सर। क्या डिफरेंस देखा आपने बिटवीन चेन्नई, कल्चर ऑफ चेन्नई एंड कल्चर ऑफ बिहार? सर सबसे पहले फूड हैबिट्स में डिफरेंस है, अगर कल्चर की बात करें। ओके, क्या डिफरेंस है फूड ऑफ इट में? वहाँ बेसिकली स्टेपल फूड में राइस से बना हुआ इडली डोसा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो लिट्टी चोखा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। व्हीट बेस्ड ज़्यादा है। व्हीट बेस ज़्यादा है। ठीक, और सर वहाँ की महिलाएं सुरक्षित रूप से बाहर घूम सकती हैं, रात को भी निकल सकती हैं। अक्सर ये गांव में भी पाया जाता है, पर ये चीज़ अभी तक बिहार में कुछ शहर छोड़कर गांव में नहीं देखा जाता है। अच्छा, महिलाओं असुरक्षित हैं अभी भी बिहार में। अच्छा, ये अच्छा, ठीक है। और सर शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु बिहार के तुलना में काफ़ी आगे है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था कल्चर से रिलेटेड, जी सर। है ना? तो कल्चरली क्या डिफरेंस देखा आपने? कल्चरली वहाँ सर टेम्पल रिलीजियसली वो लोग बहुत धार्मिक होते हैं सर। अच्छा, हर त्योहार पूजा में वो लोग बहुत परिश्रम से वो करते हैं, मतलब उनका कोई मध्यम मार्ग नहीं है जी। वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो ब्लाइंड फेथ भी हो सकता है सर उनके लिए, ब्लाइंड फेथ हो सकता है। ठीक जो है। कि टेम्पल के स्ट्रक्चर्स में कुछ डिफरेंस आपको दिखता है साउथ इंडियन टेम्पल्स एंड ईस्टर्न नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में? जी सर। क्या क्या डिफरेंस है? सर द्रविडियन टेम्पल में गोपुरम होता है, जो गेट के रूप में बना होता है। वो नॉर्थ में नहीं होता है, नागरा स्टाइल में नहीं होता है। तो नॉर्थ में क्या होता है? नॉर्थ में वो स्ट्रक्चर नहीं होता है सर, गोपुरम नहीं होता है। अच्छा, ठीक। और बताओ। साउथ में टैंक अटैच होता है टेम्पल के साथ। टैंक? वाटर टैंक। क्यों? माना जाता है कि वाटर जो है, पानी जो है वो पवित्र है हिंदुओं के लिए, और वहाँ पे इसलिए अटैच। और नदियों का जो है वहाँ पे वो कम है, नदी जो है वहाँ पे कम बहती। हाँ। अच्छा, हाँ। और क्योंकि वहाँ पर रॉक स्ट्रक्चर पुराना है, इसलिए टैंक बना हुआ है उसमें, क्योंकि इरिगेशन में भी काम आता है। वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। अच्छा, उसको इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं? जी सर। ओके, ठीक है। और कुछ आप डिफरेंस सोच पा रहे हैं? वहाँ की जो गर्भगृह होता है उनके ऊपर विमान नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि नॉर्थ इंडिया में उसे शिखर बोला जाता है। अच्छा, जी चलिए, तो आपको अच्छा कौन सा कल्चर लगा दोनों में? सर, दोनों अपने आप में अच्छे कल्चर हैं सर। बिहार अपने ये अच्छा है, और तमिलनाडु भी अच्छा है सर। तो फिर बिहार, जब दोनों ही कल्चर अच्छे हैं, तो फिर बिहार पिछड़ क्यों गया? सर बेसिकली बिहार में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है सर। इंडस्ट्री कम है, और वाटर मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। कहीं आप देखेंगे कि फ्लड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा होता है, कहीं सूखा का सिचुएशन ज़्यादा है, तो हम लोग वाटर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। प्लस स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है बिहार में, जो कि होना चाहिए था।
अच्छा, ठीक है। मुझे बताइए वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, VR? सर एक तरह का वो चीज़ें जो हम ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड में करते हैं। इन केस कोई अगर प्ले स्टेशन गेम्स हुए, हम्म, वो हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम वो विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है। और एक और टर्म इससे रिलेटेड है AR, Augmented reality। ऑगमेंटेड रियलिटी, ये क्या होती है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सचिन कैसा लगा आपको? सर ज़्यादा नर्वस है। नर्वस ज़्यादा क्योंकि हैं, ये नर्वसनेस first- दिख रहा था आपके इसमें चेहरे पे। और कौन कौन से एरियाज में आपको काम करना है आपके हिसाब से? सर मुझे महिला सुरक्षा पे ज़्यादा काम करना है। ना, वो तो स्पेसिफिक हो गया। इन जनरल क्या क्या है? यहाँ जो आप मॉक देने के लिए बैठे हो, अच्छा, ये हाँ, यहाँ पे के लिए यहाँ पे क्या क्या है? सर ये पहला मॉक इंटरव्यू होने वाला है मेरा। तो मुझे मतलब इतना डर है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, और मुझे आंसर्स आते हैं फिर भी मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ उस समय। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास आप मतलब बाहर की दुनिया आपने देखी है ना, चेन्नई में और बेंगलुरु में, प्लस आप वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट तो करते रहते हैं लोगों से, जी सर। है ना, तो ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए। पर सर जब पास में 4-5 लोग होते हैं तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो आ जाता है कि स्टेज फियर मेरे में है ज़्यादा, हाँ, मैं वो खुल के नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, उस हेजिटेशन को निकालना पड़ेगा, जी सर। है ना। और बेसिक जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे तो आप बिल्कुल ब्लैंक है ना, उसमें आपको थोड़ा सा काम करने का ज़रूरत है। बाकी वैसे ठीक है, आपका पर्सनैलिटी ठीक है, सब ठीक है, बट कुछ वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं इंटरव्यू के टाइम, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत से वर्ड्स आपने लिखा भी है शायद। बिहार के बारे में बोल रहे थे कि मतलब टर्म तो मैं एग्जैक्टली हाँ, मैंने भी लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। हाँ, ब्लाइंड फेथ। हाँ, blind faith, हाँ। तमिलनाडु के लिए मैंने बोला था। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो वो सब अवॉइड कीजिएगा। मतलब एकदम जो एक क्रिटिकल टाइप का जो आप सेंटेंस 2-3 बार आपने यूज करा, ठीक है, तो वो उस टाइप की चीजों से आपको बचना है, ठीक है। मतलब जो आप क्रिटिकली कर रहे थे, बिहार में ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, तो वो बिल्कुल आप बचना है। तो बिहार में जब है ही नहीं तो फिर आपको काम क्यों करना है, ठीक है ना। तो मतलब कई बार आप एकदम क्रिटिकल यूज कर रहे थे वर्ड्स को, तो वहाँ पे आपका जो है ना वो काफी आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको बेसिक्स थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। और आपके जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज हमने नहीं पूछा है, बट नेक्स्ट टाइम आप उसको प्रिपेयर करके आएंगे कि ऑनलाइन सिस्टम आप जिस सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉफिट्स है, क्या आज के समय में क्या उसका रिलेवेंसी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लेंगे। एंड ठीक है, आपका ऐसा नहीं है, आप मन से उस बात को निकाल दीजिए कि आप बोल नहीं पाते हैं। अगर बोल नहीं पाते तो बोलते कैसे, बोल तो रहे ही हैं आप, ठीक है। बट वही है कि अगर थोड़ा सा आप और आगे जाकर पढ़ेंगे, ज़्यादा और पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो ये फ्लुएंसी है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेसिक्स चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। एरियाज भी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। आपको आपका जो ग्रेजुएशन है उससे, आपका जो वर्क प्रोफाइल है उससे, आपका जो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे, तो वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप उस पर थोड़ा सा और वर्क कर लीजिए। कब है इंटरव्यू आपका? सर बहुत नज़दीक 25th को है। 25 को है, तो ठीक है। आप time थोड़ा है। सा घर पे वर्क कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से आपको एक बुक मिलेगा, तो उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल का देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए, हो जाएगा। बहुत आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, आपकी कमी कहीं और है। आप कई बार ना मोर एंड लेस 1-2 जगह पे आपने यूज़ किया था कि गॉड के से रिलेटेड या समथिंग के रिलेटेड आपने बोला मोर एंड लेस, तो मोर एंड लेस कहाँ पे, वो मोर एंड लेस था नहीं, वो एग्जैक्ट था, ठीक है। तो वो जो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे आप,
वो थोड़ा सा निगेटिविटी प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। अदरवाइज आप जो कमी बता रहे हो वो कमी नहीं है, ठीक सर है। मुझे और एक मेरे तरफ से कमी लगता है ना सर, मैं जो भी बोलता हूँ वो वर्ड्स बराबर निकल के नहीं आते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा है ना, जैसे होता क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे लाने के लिए इस रूम के बाहर आप क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रूम के बाहर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप आके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बेसिकली आप कैरी करके लाते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस हम कैरी करके लाते हैं। कहने का मतलब है जो भी आपने डैफ में दिया है, अगर उसके बारे में आप ये सोचिए कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं और ये आपका सामने डैफ है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और गेटिंग माय पॉइंट। आप देखना कि 150 क्वेश्चन आप खुद ही बता देंगे कि ये क्वेश्चंस मैं अगर होता ये क्वेश्चन मैं कैंडिडेट से पूछ लेता। तो वो क्वेश्चंस तो आप तैयार कर लीजिए, आप समझ गए। तो उससे होगा क्या कि आप जब 150 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार करके आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे डिफरेंट होगा, है ना। आप क्योंकि आप तैयार रहेंगे कि चलो एक क्वेश्चन अभी पूछने वाले हैं कि भाई कंटेंट राइटिंग में तुम्हें आपने ये क्यों ज्वाइन किया है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री आपने क्यों लिया है ना। तो उससे और कुछ नहीं होगा, उससे आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस पॉजिटिव हो जाएगा, और 2-4 क्वेश्चन जैसे ही कॉमन मिलेगा हॉल में तो आपका ऑटोमेटिकली फर्दर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि बस लाना है सर, वो वैसे बोलने से नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। आप प्रैक्टिस कितना करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कॉन्फिडेंट एक्चुअल डे में कितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, है ना। तो मॉक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे, मॉक का मतलब है कि घर पे आप क्या कर रहे हैं। ओके सर। अगर वहाँ पे परफॉर्म ठीक करेंगे तो यहाँ ठीक होगा, यहाँ ठीक होगा तो वहाँ भी ठीक होगा। आप समझ गए? कितना टाइम आप दे रहे हैं अभी घर पर इंटरव्यू? अभी सर अगर फ्रैंकली बोलूँ तो सर इंटरव्यू के लिए अभी कुछ नहीं किया हूँ मैं। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। आप एक काम कीजिए, आराम से ना पहले क्वेश्चंस देखिए, आप अपने आप को बना लीजिए इंटरव्यू लेने वाला, डैफ ले लीजिए और क्वेश्चंस लिख लीजिए एक के बाद एक, जो मन में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा इस डैफ से, उससे आपके पास एक क्वेश्चनर बन जाएगा। फिर उसके बाद आराम से सोच लीजिए उसका क्या क्या जवाब आप दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। और एक डाउट है मेरा, मैंने जो भी जवाब दिया है क्या मैं गलत बोल रहा था? नहीं, गलत का बात नहीं। देखिए होता क्या है ना कि जब आप बोलते हैं किसी चीज़ को तो टेंटेटिवनेस एंड फॉर्मनेस दोनों में से एक होगा। आप टेंटेटिव है या एकदम फॉर्म है जो आप बोल रहे हैं। तो ओबियसली जब आप, क्योंकि आपका प्रिपरेशन नहीं है तो आप टेंटेटिव थे, मतलब आपको खुद ही नहीं मतलब पता है कि आप जो बोल रहे हैं कितना सही है, जबकि वो सही है और आपको लग रहा है अंदर से कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो वो यहाँ पे आ रहा था, रिफ्लेक्ट होकर आ रहा था यहाँ से। ओके सर। आप समझ गए ना, तो ये है, ठीक है। वही बात है, कितना जगह पे लग रहा है आपको कि आप गलत हैं लेकिन आप सही थे, तो थोड़ा सा 1-2 बार आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।